A very good morning to all of you. I am Kehkashan, Faculty of SK and Target. Today I am going to start the critical essay of great Victorian poet critic Matthew Arnold, Function of Criticism. In my previous class, I have already discussed about the biography of Matthew Arnold, his another critical work such as Culture and Anarchy and the Study of Poetry. So today we are going to start about the function of criticism. As we know that the Matthew Arnold was a great Victorian poet, critic, and the first modern critic of in English literature, and he is also known as critic's critic. According to Arnold, the purpose of literary criticism to know the best that is known and thought in the world, and by its term, this known to create a current and true and fresh ideas. He believes that the function of a critic is to give the fresh and the true ideas. He has I have already explained that he has influenced the whole school of criticism, including T.S. Eliot, F.R. Lewis, and Alan Tate. He has influenced the first 20th, the first 60 years of the 20th century. He was the founder of the sociological school of criticism and thought. He has given the concept of touchstone method in his critical work Study of Poetry. The touchstone method introduced the scientific objective of the critical evaluation by providing comparison and analysis as the two primary tools of criticism. Arnold evaluation of the romantic poets, as I have already discussed, that he has evaluated or he has criticized. 1 minute. Arnold evaluation of the romantic poet such as Wordsworth, Byron, Shelley, and Keats. He has not only evaluated romantic poets, but he has also evaluated the Chaucer, Shakespeare, Milton, and he has started his evaluation from Chaucer. But his evaluation of the romantic poets are landmark in the descriptive criticism. And as a poet critic, he occupies an eminent position in the rich galaxy of poet critic in English literature. Before Arnold, there was also lots of critics who has given their critical theory, but his critical theory was only confined for beauties and defects of art. But Arnold, the critic, chose to educate and guardian of the public opinion and propagate of the best ideas. He not only think about what is beautiful or criticize. Consider he follows criticism not only in art but also in life. उन्होंने criticism को ना ही सिर्फ art में अपनाया बल्कि जिंदगी में भी अपनाया. ठीक है. His work Culture and Criticism values seems to be synonymous for Arnold. According to him, culture and criticism both are interrelated with each other. There was many critics who compares Arnold with Aristotle. Likewise, the Scott James comparing him to Aristotle, and he says that Aristotle analyzed the work of art, whereas Arnold analyzed the role of critic. He believes that Aristotle gives us the principle which govern the making of the poetry. Aristotle emphasized on how the poetry is written.
But whereas the Arnold gives the principle by which how the best poem should be selected and made. Aristotle's critic owes allegiance to the artist, but Arnold's critic has a duty to society. So, from up to clear now, students, up to clear now. Am I audible? Students, am I audible? Okay, up to clear now. So the first slide is sure I have already explained, I have given the introduction of his criticism and Arnold as a critic and how he is related to how his criticism is related to Aristotle. Okay, so today we are going to study the function of criticism. Okay, so this work, see the cursor, जहाँ cursor जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा. Okay, his essay, The Function of Criticism, at the present time was published in his first collection of critical essay in criticism. उनका एक critical work है, essay in criticism, उसमें ही जो है function of criticism को publish किया गया था कब? 1865 में. You have to remember the date that the function of criticism was published in 1865 in his critical work essay in criticism. याद रखिएगा essay in criticism क्योंकि essay on criticism अलेक्जेंडर पोप का है, याद रखिएगा. his essay अर्नोल्ड इसमें ये मानते हैं, अर्नोल्ड बिलीव्स करते हैं कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए. क्रिटिसिज्म शुड बी डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि जो आइडियाज, क्रिटिसिज्म में क्या होना चाहिए, आइडियाज, फैक्ट्स और जो चीज़ें आप जानते हैं उसके बारे में क्या करना है, एक क्रिटिक को बताना है. और वो आइडियाज कैसे होने चाहिए, दीज आइडियाज शुड बी अनप्रेजुडिस, अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए. एंड इम्पार्शियल एफर्ट्स टू स्टडी एंड स्प्रेड द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड. ये चीज़ मैंने आपको कल्चर एंड अनार्की में भी बताई थी कि कल्चर क्या है, परफेक्शन पाना. ठीक है, तो वह यहाँ पर इसका रिलेशन ये बताने के लिए मैंने यूज किया है कि क्रिटिक का काम क्या है कि जो भी आइडियाज हैं, जो बेस्ट आइडियाज हैं, जो बेस्ट नॉलेज उसके पास है उसको क्या करना, बताना. उसको क्रिटिक का ही काम है कि जो बेस्ट आइडियाज हैं, जो बेस्ट थॉट्स हैं उसको बताना. क्लियर? Arnold defines the role of critic as one of the view and object what it really is to bring the best ideas to the masses. मतलब क्रिटिक का काम क्या है कि जो बेस्ट आइडियाज हैं, जो बेस्ट थॉट्स हैं और जो बेस्ट थिंग्स हैं उसको क्या करना, एक्सप्लेन करना पब्लिक को, मास को, एंड टू क्रिएट एन एटमोसफेयर दैट फ्यूज द लिटरेरी जीनियस ऑफ द फ्यूचर. और जो लिटरेरी जीनियस है उसको क्या करना, उसको बढ़ावा देना, उसको आगे की तरफ ले जाना. He stated that the role of criticism is to make itself inheritably valuable and rouse of the man complacency to the state achieving perfection. यहाँ पे इस चीज को समझिए, कह रहा है कि जो क्रिटिसिज्म है और जो क्रिएटिविटी है दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है. अर्नोल्ड ऐसा मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही पाए का वर्क है, बहुत बड़ा वर्क है. ठीक है, और जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगा तब तक क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म और क्रिएटिविटी दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, और वन थिंग ये पूरे पैराग्राफ में जो एक चीज बताई जा रही है, जो इसका मेन पॉइंट ये है कि क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, एंड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है. ठीक है, क्रिएटिविटी गिव्स बर्थ टू क्रिटिक. और ये जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्थ किसने दिया है, क्रिएटिविटी ने दिया है. ठीक है, अगर जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगा तब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा. तो क्रिटिसिज्म को जो बर्थ किसने दिया है, दैट द क्रिएटिविटी हैज गिवन द बर्थ टू क्रिटिसिज्म. अब क्रिटिसिज्म क्या है और क्रिएटिविटी दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है. कहता है कि जब कोई राइटर क्या करता है, किसी चीज को लिखता है, ठीक है,
तो क्रिटिक क्या करता है, क्रिटिक उस वर्क को इवैल्यूएट करता है। जब उस वर्क को इवैल्यूएट करता है, जब उसको जज करता है, तो उसकी ब्यूटीज को, उसके लूप होल्स को, ठीक है, वो बताता है। ठीक है, जब वो उसको बताता है, जब वो उसको एनालाइज करता है, तो उसको वो फॉलो करता है। और जब वो उसको फॉलो करता है, तो जब वो दूसरा अपना क्रिएटिव वर्क लिखता है, तो वो चीजें उसके ध्यान में होती हैं और उसका जो वर्क है वो बेटर होता है। इसको तुम इस एग्जाम्पल से समझो कि जो टीचर है और वो स्टूडेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उसके पास नॉलेज है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, तो वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, कुछ बताता है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट कोई चीज लिख करके आया, ठीक है, लिख करके लाया, किसी चीज पे लिखा, ठीक है, मैंने उसको फैसिलिटेट किया, उसने लिखा, उसने बताया, ठीक है, मैंने उसको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद उसने उस चीज को समझा, उस चीज को जाना, और जानने के बाद क्या किया, उसने अपना जो दूसरा वर्क लिखा, दूसरा काम जो लिखा, या दूसरा प्रॉब्लम जो किया, उसमें वो प्रॉब्लम्स को उसने नहीं डाला, उस प्रॉब्लम से वो बच के निकला। तो क्या हो गया यहाँ पे कि उसका जो दूसरा वर्क है वो डिवाइड ऑफ प्रॉब्लम्स हो गया। मतलब वो जो दूसरा उसका वर्क था, वो क्या हो गया, उसमें कोई भी लूप होल्स नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ठीक इसी तरीके, जिस तरीके से स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरीके से क्रिएटिविटी और क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? इज इट क्लियर अप टू नाउ? ठीक है, देखो, अर्नोल्ड ऑल्सो लिंक्स क्रिटिसिज्म टू द क्रिएटिविटी। अर्नोल्ड क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म को और क्रिएटिविटी के बारे में बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। साइटिंग हाउ द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिसिज्म गिव्स राइज टू क्रिएटिव जॉय। अगर कह रहा है कि अगर मैंने कुछ लिखा, अगर कोई कोई अगर राइटर है, उसने कुछ लिखा और उसके वर्क को अगर बढ़िया से इवैल्यूएट किया गया, उसको अप्रिशिएट किया गया। अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को गिनाया गया। अप्रिशिएट का मतलब यहाँ पर है कि उसको क्रिटिकली अगर इवैल्यूएट किया गया, जज किया गया, तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई मेरी ये गलती थी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब वो दूसरा काम लिखेगा, जब दूसरा पोएम अपना लिखेगा, तो उस गलती, वो चीजें उसके ध्यान में होंगी कि जो है हाँ भाई यहाँ यहाँ से मैं, तो दूसरे वर्क में उसको क्या होगा, वो गलतियां नहीं होंगी, तो वो उस चीज को क्या करेगा, और ज्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकेगा। और जो उसका दूसरा वर्क होगा, वो उसके पहले वर्क से क्या होगा, ज्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसने अपनी, उसको पता हो गया कि उसकी गलतियां क्या है और उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। इसलिए क्रिटिसिज्म और जो है क्रिएटिविटी, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। That comes from the original writing. He argues that unlike Wordsworth's opinion on criticism, it must be considered as a form of art for its vital contribution in the literary world and the social in general. कहते हैं कि जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ क्या मानते थे कि जिस तरीके से जो क्रिएटिविटी है क्या है, एक आर्ट है। अनडाउटेडली क्रिएटिविटी एक आर्ट है। क्रिएटिविटी का मतलब चाहे आप पोएम लिखते हो, चाहे आप पेंटिंग लिखते हो, चाहे आप फिल्म डायरेक्ट करते हो, चाहे आप कुछ भी, चाहे आप डांस करते हो, जो भी चीजें करते हो, ये क्या है, एक आर्ट है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो भी एक आर्ट से कम नहीं है, उसको भी आर्ट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो क्रिएटिविटी परफेक्ट नहीं हो पाएगी, और अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर क्रिटिसिज्म नहीं होगा। यानी कि दोनों का जो जीवन है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म कभी नहीं हो सकता है, और अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो क्रिएटिविटी में परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही इंटरलिंक है। तो वर्ड्सवर्थ जैसा कि मानते थे कि क्रिएटिविटी को जिस तरीके से एक आर्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक उसी तरीके से क्रिटिसिज्म को भी एक आर्ट कंसीडर करना चाहिए। जो अर्नोल्ड साहब हैं वो भी क्या करते हैं, उनकी बात को सेकंड करते हैं और कहते हैं कि इट शुड आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट लाइक क्रिएटिविटी। क्रिटिसिज्म को भी क्रिएटिविटी, आर्ट की कैटेगरी में रखना चाहिए, जिस तरीके से क्रिएटिविटी को रखा गया है। It is a form of exciting free creativity. He also states that criticism paved the way to creativity.
जाहिर सी बात है, अगर जो है क्रिटिसिज्म क्या करता है, रास्ता तैयार करता है किसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कि तुम्हारे अंदर परफेक्शन आए और परफेक्शन आए और परफेक्शन आए। अगर सपोज करो, अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे अगर किसी ने बता दिया कि तुम्हारा कंटेंट, जैसे तुमने मुझे बताया मैम आप पढ़ाते हो तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, कंटेंट से इशू नहीं है। दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या है मैम, आपको टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज कम है, आपका जो वीडियो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है आउटर डिस्टर्बेंस रहता है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को सही कर लो तो आपके वीडियोस बहुत अच्छे बनेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर। तो मुझे तुमने ये चीज़ बताया, एज अ क्रिटिकली तुमने मुझे इवेल्युएट किया। अब जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हमारी, मैं उसमें पिक्चर्स डालूंगी, उसमें थोड़े से वीडियोस डालूंगी, उसको कलरफुल करूंगी, उसको अंडरलाइन करूंगी, तो जो मेरा पीपीटी होगा वो क्या होगा, खूबसूरत होगा, होगा ना। और अगर मैं फिर क्या करूंगी, एक रूम में बंद होकर के शांति से पढ़ाऊंगी एंड देन उसको अपलोड करूंगी, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा, उसमें क्लियरिटी ऑफ पीपीटी होगी, यानी कि चीजें दिखी अच्छे से आएंगी। दूसरा, जो आउटर डिस्टर्बेंस हो रहा था वो नहीं होगा, तो सुनने वाला क्या करेगा, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आया, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ही लिंक्ड है and can be linked to the satisfaction derived from the creative writing। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ है जो किसी को भी नहीं समझ में आया, अप टू क्लियर नाउ एवरीथिंग, कृष्णा, शिखा, पायल, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आगे बढ़े। देखो, नाउ वी गो टू द सेकेंड स्लाइड। देखो सेकेंड स्लाइड में यहाँ पर जिन लोगों ने हमारा, मैंने अभी फोन करके बोला था यू हैव टू स्टडी द स्टडी ऑफ पोएट्री, स्टडी ऑफ पोएट्री जिन लोगों ने अच्छे से समझा है उनको ये दो पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होगा, एंड आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। देखो, the function of criticism in the present time is largely made on the ideas of Arnold discussed in the study of poetry। और study of poetry में वो already discuss कर चुके हैं कि जो है criticism क्या होना चाहिए। He defines criticism as a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought of the world, and thus to establish a certain of a fresh and true ideas। The term disinterested in his views of Arnold refers to bring an impartial and just reader. A critic needs to free from prejudice, historical and personal. Historical prejudices is when a critic resorts to the view through the lens of the past and neglect the present in the work. The personal prejudice refer to the personal liking and can cloud the judgment। यहाँ पे बहुत जिन लोगों ने हमारा जो है वो वीडियो देखा होगा, they can understand। 1 minute। Is anyone waiting in the room? Teju is waiting. ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मतलब जो फंक्शन ऑफ जो क्रिटिसिज्म है उसको वो ऑलरेडी जो है बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं, किसमें, स्टडी ऑफ पोएट्री में वो डिफाइन करें कि एक जो क्रिटिक होना चाहिए उसको कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग है कि ही शुड नॉट, when he is evaluating any work of art, he should not give their own personal opinion। जो भी चीजें, सपोज करो कि जो भी चीजें बेस्ट, जैसे मैंने कल्चर एंड आर्ट में बोला था कि क्या होना चाहिए, कल्चर का मतलब क्या है, टू रीच द परफेक्शन। जो भी चीजें उसे बेस्ट पता है, ठीक है, एक क्रिटिक को जो उसका बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट थिंग जो है दुनिया में कही गई है या बेस्ट चीजें जो उनको की गई है, उसके आधार पे किसी भी वर्क का इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी पहली बात, दूसरी बात जो है, जब हम किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो इट शुड बी डिवाइड ऑफ द पर्सनल एंड द हिस्टोरिकल एस्टिमेट। वी शुड ऑलवेज जज अ वर्क ऑफ आर्ट बाय द रियल एस्टिमेट। अब पर्सनल एस्टिमेट क्या होता है, व्हेन वी ऐड आवर ओन लाइकिंग। अगर हम किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को अपने लाइक्स और अपने डिसलाइक्स से जो है जज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल एस्टिमेट होता है। हिस्टोरिकल एस्टिमेट, सपोज करो कि अगर कोई राइटर है या कोई पेंटर है, उसकी बहुत सारी पेंटिंग पहले अच्छी नहीं थी, बट अगर उसने प्रेजेंट वर्क ऑफ आर्ट, अगर प्रेजेंट
प्रेजेंट उसकी पेंटिंग है, प्रेजेंट उसका पोयम है, जो पोयम जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में अगर अच्छा है तो हम उसको बोलेंगे कि अच्छा है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमको जो है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एज इट इज जज करना चाहिए, ना कि किसी प्रेजुडिस से, मतलब जो अपने पर्सनल लाइक और डिसलाइक है, और ना ही उसको हिस्टोरिकल एस्टिमेट से जज करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज जज अ वर्क ऑफ आर्ट through the personal estimate rather than the sorry, we should always judge a work of art through the real estimate rather than the personal or historical estimate से हमें जज नहीं करना चाहिए, because if we do this the judgment become cloudy. Okay, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ठीक है। अर्नोल्ड कि किसी भी राइटर को, जब कोई भी राइटर अगर ग्रेट होता है, द टू थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहला जो है उसका खुद का जीनियस यानी कि उसका इंडिविजुअल टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा द एज इन विच ही बिलोंग्स टू। आई विल गिव यू एन एग्जांपल सो द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर खुद एक बहुत ही ग्रेट राइटर था, अनडाउटेडली वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है। दो उसको बहुत अच्छा पेरेंटेज नहीं मिला, he did not get a very good schooling, उसको नहीं मिली, लेकिन वो खुद एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज्यादा उसका जीनियस बहुत ज्यादा था, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वो जिस एज से बिलोंग करता था, एज वी नो दैट Elizabethan age is the most flourishing age of drama, most flourishing age for ड्रामा के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो उसको उस एज का बेनिफिट मिला, ठीक है। उसको जो लोग मिले, जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया, भले ही उन्होंने स्कूलिंग नहीं की, उनको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बट उन्होंने काम किसके साथ किया? ही वर्क विद द यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर। एंड हु आर द यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर? यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर was the scholars of the Cambridge and the Oxford University। इसीलिए जो है वर्ड्सवर्थ का जो आइडिया था, जो नॉलेज था, इट बिकम्स अ लार्जर देन लाइफ हो गया, और उसका जो वर्क था, द वर्क ऑफ शेक्सपियर इज अ लार्जर देन लाइफ। शेक्सपियर का जो वर्क लार्जर देन लाइफ क्यों हुआ? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इंटेलिजेंट, और वो जिस एज से बिलोंग करता था वो भी बहुत ही ज्यादा ग्रेट था। इसको हम अगर दूसरे एग्जाम्पल से दें तो आप ये समझो कि किसी और एज में, ठीक है, किसी और में, चाहे वो विक्टोरियन हो गया, सॉरी, चाहे वो एलिजाबेथन हो गया, चाहे वो प्यूरिटन हो गया, चाहे वो रेस्टोरेशन हो गया, उसने इतना ज्यादा नॉवेल जो है फ्लरिश नहीं किया था, विक्टोरियन एज में फ्लरिश किया। क्यों? क्योंकि इस एज में बहुत बड़े ग्रेट जो है क्या हुए, नॉवेल राइटर्स। अगर हम डिकेंस की बात करें तो डिकेंस तो क्या थे, खुद बहुत इंटेलिजेंट थे, प्लस उनको जो माहौल मिला, जो लोग उनको मिले, जो जिस एज में वो था, वो एज भी क्या था, नॉवेल राइटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट था। तो इसलिए किसी भी राइटर को ग्रेट होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उसका खुद का इंडिविजुअल टैलेंट, एंड द अनदर थिंग कि जिस एज से वो बिलोंग करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, दो एग्जाम्पल दिया है, गोएथी और बायरन का। गोएथी के बारे में हम जानते हैं कि ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ पोएट, ही इज एन आर्टिस्ट। कहते हैं कि गोएथी और बायरन, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या थे, बहुत ही ग्रेट थे, ठीक है। इनके इनके अंदर भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल टैलेंट था, और बायरन के अंदर भी इंडिविजुअल टैलेंट था। बट हम जानते हैं कि जो है, जो गोएथी का जो कद है वो बायरन से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ऑब्वियसली गोएथी इज मच ग्रेटर राइटर देन बायरन। व्हाई? बिकॉज ही, ये क्या थी, इनको जो एज मिला, जो माहौल उनको मिला, वो भी बहुत ग्रेट था इनके लिटरेरी जीनियस के फ्लरिश के लिए, और खुद क्या थे, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, गोएथी को ज्यादा ग्रेट बना दिया इन कंपेयर टू बायरन, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी इंसान को ग्रेट बनाने के लिए द टू थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट, कि जो उसका जो है क्या है, द पावर ऑफ मैन, यानी कि उसका खुद का इंटेलिजेंस, एंड द पावर ऑफ द मूवमेंट, जिस एज में वो बिलोंग करता है, वो एज, दोनों को ही ग्रेट होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें अगर ग्रेट होती है, अगर अच्छी मिल जाती है उसको, तो वो क्या कर जाता है, वो आदमी एक्सेल कर जाता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, ये स्लाइड क्लियर है सबको? शुड आई मूव ऑन? पिंकी, शुड आई मूव ऑन? आगे बढ़े ना? देखो अब यहाँ पे जो है
कह रहा है थ्री फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक, एक क्रिटिक का फंक्शन क्या होता है, क्रिटिक हैज अ थ्री फंक्शन, उसके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये जो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि पहला फंक्शन क्या होता है, सी थिंग एट इट इज, पहला फंक्शन क्या होता है, ये पहले पैराग्राफ में मैं बता रही हूँ कि क्या पूरा बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होता है उसका, ओके यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा है कि एक क्रिटिक का क्या होता है, तीन फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है कि वो चीज़ों को उस तरीके से देखे जैसा वो है, ठीक है। उसमें उसको कभी भी अपना हिस्टोरिकल एस्टिमेट नहीं डालना है, अपना पर्सनल एस्टिमेट नहीं देना है, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा किसी भी वर्क को ऑब्जेक्टिव होकर के जो जज करना है, ठीक है। आप अगर देखोगे अगर ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टाइम को अगर तुम देखोगे तो उसमें भी जो है टीएस एलियट इसी तरह की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि जो क्रिटिक होना चाहिए उसको हमेशा क्या होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, इम्पर्सनल होकर के हमको किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात क्या कहते हैं कि एक क्रिटिक का सबसे पहला काम क्या है, टू सी थिंग एज इट इज, जैसी चीज है हम क्या करें उसको देखें। उसका दूसरा टास्क क्या है कि जो जो फ्रेश आइडियाज हैं, ठीक है, जो फ्रेश आइडियाज हैं, जो बेस्ट आइडियाज हैं, जो बेस्ट चीजें, उसको क्या कर देना, स्प्रेड कर देना, उस नॉलेज को क्या कर देना, पूरी दुनिया में स्प्रेड कर देना। यहाँ पर भी जो है टीएस एलियट सेकंड करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड को। उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल है, नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटेशन, नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटेशन। यानी कि यहाँ पे जो है अर्नोल्ड साहब कहते हैं कि जो बेस्ट आइडियाज हैं, ठीक है, जो नोबल आइडियाज हैं, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, जो कल्चर थिंग है, जो कल्चर आइडियाज है, उसको क्या कर देना, फ्लरिश कर देना, उसको स्प्रेड कर देना। दिस इज द सेकेंड वर्क ऑफ अ क्रिटिक। अब कहते हैं कि तीसरा वर्क क्या है, मतलब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम उसका ये है कि जो एक एटमोस्फेयर क्रिएट करना, किसके लिए, क्रिएटिव राइटर्स के लिए, जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। सपोज क्रिएटिव राइटिंग का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब इसे नहीं है कि पोएट्री राइटिंग, जितनी भी क्रिएटिव वर्क है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो नॉवेल राइटिंग हो, वट एवर, जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग है वो क्या होनी चाहिए, उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन तैयार करना, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट तैयार करना, जिसमें एक क्रिएटिव राइटर या फिर एक क्रिएटर जो क्या कर सके, खुल के सांस ले सके और अपने वर्क को फ्लरिश कर सके। एक ऐसा माहौल तैयार करना, एक ऐसा रास्ता तैयार करना, एक ऐसा स्टेज देना क्रिएटिव राइटर्स को कि वो क्या कर सके, अपने लिटरेरी जीनियस को, जो उनका जीनियस है, जो उनका इंटेलेक्ट है, उसको अच्छे से जी सके और उसका बेस्ट यूज करके जो बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट है उसको प्रेजेंट कर सके। तो एक क्रिटिक का यही तीन काम होता है। पहला काम उनका क्या होता है कि किसी भी चीज को देखना वैसे जैसे कि वो है। दूसरा क्या करना, जो फ्रेश और जो बेस्ट आइडियाज है उसको स्प्रेड करना। और तीसरा वर्क क्या है, मतलब तीसरा काम एक क्रिटिक का क्या होता है कि जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उनके लिए क्या करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक एटमॉस्फेयर तैयार करना, ताकि वो अपनी बेस्ट राइटिंग या बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अभी देखो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे वही बात कहते हैं जिसको उन्होंने पहले में बताया था, ठीक है, कि एक बेस्ट राइटर जो है, एक आदमी बेस्ट कब बनता है, जब उसको क्या करता है, जब उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है और वो जिस एज से बिलोंग करता है वो दोनों में अगर बहुत बढ़िया तालमेल है, अगर दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस है, ओनली तभी क्या कर सकता है, एक ग्रेट लिटरेरी जीनियस पैदा हो सकता है। देखो Arnold also observes that to recognize the greatness of the literary work, one has to look beyond the social ideas and influence that cast shadow and opinion. Further, he indicates that two powers must converge to create the great piece of literature, the power of man and the power of moment. ये बात को बहुत ही अच्छे से explain किया जा चुका है अभी। In the quest to be a critic, Arnold believes that the one must not confine himself to the literature of the own country, but show the substantial of the present
लिटरेचर। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, कह रहा है कि यहाँ पे भी जो एलियट जी है इसको सेकंड करते हैं। एलियट का अगर आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये कहते हैं कि जो एक क्रिटिक का क्या फंक्शन है, तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया। दूसरे पैराग्राफ में वो बताते हैं कि एक क्रिटिक के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द क्रिटिक मस्ट बी द मैन ऑफ लेटर्स। क्रिटिक क्या होना चाहिए, ही शुड ऑलवेज बी अ मैन ऑफ लेटर, ठीक है। दूसरा, हिज नॉलेज शुड नॉट बी कन्फाइंड टू हिज ओन एज, ही मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द ग्रीक, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एंशिएंट, ही मस्ट नॉलेज हैव अ क्लासिक, ही मस्ट नॉलेज हैव अ पास्ट। उसको सिर्फ अपनी एज का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको पास्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, पास्ट के लिटरेरी वर्क्स का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर वो किसी चीज के को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका नॉलेज का जो हॉरिजन सिर्फ प्रेजेंट तक ही संकीर्ण नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द प्रेजेंट एज, इट शुड बी, he should have a knowledge of the past, उसको past का भी knowledge होना चाहिए। A critic's knowledge of a critic must be larger than life, only he is able to analyze a work of art। उसका knowledge का जो horizon होना चाहिए must be very great, the horizon of his knowledge must be very high, वो बहुत ज़्यादा spread किया हुआ होना चाहिए knowledge, ठीक है। तीसरी बात, उसको क्या करना चाहिए, डिफरेंट लिटरेचर का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर सपोज करो कि इफ ही इज जजिंग एन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको ग्रीक का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको अमेरिकन का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको इंडियन का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको अफ्रीकन का भी नॉलेज होना चाहिए। इसका ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें तो जो क्रिटिक है, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अगर मैन ऑफ लेटर्स नहीं होगा, अगर उसको बेस्ट थिंग्स के बारे में नहीं पता है, उसको अगर वर्स्ट थिंग के बारे में नहीं पता है, अगर किसी भी एज में या फिर किसी भी लिटरेचर में क्या बेस्ट वर्क है, क्या किसी भी एज का कौन सा बेस्ट वर्क है, कौन से बेस्ट राइटर्स हैं, वो सारे के नॉलेज अगर उसको नहीं होंगे तो वो कभी भी किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अब तो क्लियर नाउ, फर्स्ट थर्ड स्लाइड का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ क्लियर है, किसी को कोई इशू? पायल, File any issue? Should I move on? अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि रोल ऑफ क्रिटिक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझो। एज अ क्रिटिक जो है, एज अ क्रिटिक अर्नोल्ड इज एसेंशियली अ मॉरलिस्ट। मैंने बार बार कहा है कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को ना सिर्फ आर्ट में अपनाया है बल्कि लाइफ में भी अपनाया है। और उन्होंने पोएट्री के बारे में क्या कहा है कि पोएट्री जो है वो क्या करता है, लाइफ का क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है। पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जिंदगी को रास्ता दिखाता है। तो वो इस चीज को कहते हैं कि जो बताते क्या है, व्हाट द पोएट्री शुड बी और व्हाट द पोएट्री नॉट शुड बी। एंड ही आल्सो बिलीव्स द पोएट्री that revolts against the moral ideas is also revolt against the lie, ठीक है। The poetry that is indifference to the poetry that is indifference to moral ideas, the poetry that poetry is also indifference to life। तो यहाँ पर जो इनके आइडियाज हैं, मतलब जो अर्नोल्ड के जो आइडियाज हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं किससे, एरिस्टोटल से। क्योंकि एरिस्टोटल भी जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एरिस्टोटल भी ऐसा मानते हैं कि जो पोएट्री है इट इज ऑलवेज सुपीरियर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। हिस्ट्री से और फिलोसफी से क्या होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है। क्यों सुपीरियर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रुथ पाया जाता है और सीरियसनेस पाया जाता है, ठीक है। अर्नोल्ड भी यही बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अर्नोल्ड्स मिरर एरिस्टोटल व्यू ऑफ पोएट्री, ठीक है। अर्नोल्ड ने क्या किया है, जो पोएट्री जो एरिस्टोटल का जो पोएट्री का व्यू है उसको सेकंड किया है। तो एरिस्टोटल क्या मानते थे कि पोएट्री में क्या होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, हाई सीरियसनेस होना चाहिए, मैटर बहुत एलिवेटेड होना चाहिए, जो मैनर में वो लिखा गया है वो बहुत एलिवेटेड होना चाहिए। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि
सबसे ज्यादा किस पे इम्फेसिस किया, प्लॉट पे, यानी कि कहानी पे। तो कहानी पे इम्फेसिस करने का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो बहुत ही एलिवेटेड होना चाहिए, जिस मैनर में लिखा गया है, जिस स्टाइल में लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो बहुत एलिवेटेड होना चाहिए। अगर आप अर्नोल्ड की बात करें तो अर्नोल्ड क्या कहते हैं कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अगर हम एरिस्टोटल की बात करते हैं तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, दैट पोएट्री इज अ इमिटेशन ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या है, इमिटेशन। एक क्या कहता है कि लाइफ को इमिटेट करता है और दूसरा क्या कहता है लाइफ को मार्गदर्शन करता है। तो दोनों के आइडियाज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आदमी ऐसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसी चीज को इवैल्यूएट करता है जो जिंदगी को रास्ता दिखाती है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, जिंदगी की मतलब जिंदगी के सच को बताती है, तो उस आदमी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस आदमी को कैसा होना चाहिए, उस आदमी का जो नॉलेज का हॉरिजॉन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। उस आदमी को हमेशा मतलब उसके अंदर प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नैरोनेस नहीं होना चाहिए, उसके वो हमेशा मैन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। ओके, Arnold suggests that the function of criticism at the present time is to make itself inherently valuable in itself, whether the values spring from bringing joy to the writers, from making sure the best ideas reach societies are irrespective। अगर कह रहा है कि अगर कोई आदमी अगर ऐसी चीज को इवैल्यूएट कर रहा है जो जिंदगी का मार्गदर्शन करती है, जिंदगी की नकल करती है, जिंदगी जीने का रास्ता बताती है, तो उस आदमी को क्या करना, उस आदमी के पास क्या होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। तभी क्या कर सकेगी, वो ऐसे चीज को इवैल्यूएट कर सकेगी जो जिंदगी का मार्गदर्शन करती है, जो जिंदगी को इमिटेट करती है। क्लियर? तो उसकी नॉलेज का हॉरिजॉन भी क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई है। क्योंकि अगर कल्चरल एनार्की में पढ़ोगे कि एरिस्टोटल किसकी बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, कहते हैं कि परफेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, वो एक परफेक्ट सोसाइटी की बात करते हैं। और परफेक्ट सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं, मतलब अगर तुम देखो तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि कल्चर क्या है, परफेक्शन को अचीव करना। परफेक्शन कैसे आएगा, जब हम जिंदगी का क्रिटिसिज्म करेंगे। जिंदगी का क्रिटिसिज्म कौन करेगा, पोएट्री करेगी। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पोएट्री क्या है, जिंदगी को क्रिटिसिज्म करती है, और जो क्या करेगा, ऐसे चीज को इवैल्यूएट करेगा कि जो जिंदगी को क्रिटिसाइज करती है, तो ऑब्वियसली उसका जो नॉलेज का हॉरिजॉन होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। Criticism performs another important function as well. It draws men out of the self-satisfaction and completion. By shaking complacency of criticism makes their mind dwell upon what excellence in itself and make them competence the ideally perfect. Therefore, criticism must rise above the practical consideration and have the ideal perfection as his aim in order to make other rise। कह रहा है यहाँ पे कि जब हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हमारा क्रिटिसिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जिसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको जीवन में सेटिस्फैक्शन मिले। अगर मुझे किसी ने इवैल्यूएट किया, मुझे अगर किसी ने जज किया, सपोज करो कि मेरे अंदर जो ब्रूट फोर्स, सपोज करो कि मैं एक पोएट्री, मैम क्या है, एक पोएट्री है। अब मैम को तुमने इवैल्यूएट किया कि पोएट्री का कंटेंट तो बड़ा अच्छा है, मैटर तो बहुत अच्छा है, बट क्या है, इसमें जो है टेक्निक्स की कमी है, स्टाइल की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, इसमें वो जो एक्साइटमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए उसकी कमी है। अब मुझे वो चीज़ पता चली, अब मैंने उन चीज़ों को इनहेरिट किया। अब इनहेरिट करने के बाद क्या किया, मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढाला। ढालने के बाद मैं क्या हुई, मैं एक मोर परफेक्ट टीचर के रूप में, एक मोर परफेक्ट पोएट्री के रूप में आई। तो उससे मेरी ज़िंदगी में क्या मिला, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। आया समझ में सबको? अप टू क्लियर नाउ कृष्णा? अब यहाँ पे जितनी भी बातें हैं ये सब उसका ही ये है। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाए। जो मेन बातें थी वो मैंने सब बता दी। अभी जो 2 स्लाइड है ये बस उसका क्या है, एक कंक्लूजन है। Arnold believes creative capacities to be more important than critical function। यहाँ पर एक चीज याद रखो कि अर्नोल्ड कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म ज्यादा इम्पोर्टेंट। अर्नोल्ड हमेशा ये बोलते हैं कि क्रिएटिविटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर
क्रिएटिविटी फर्स्ट नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। और बिना क्रिएटिविटी के क्रिटिसिज्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और बिना क्रिटिसिज्म के क्रिएटिविटी में कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी हमेशा एकदम टॉप पोजीशन पे होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है, बहुत ही हाई पावर का वर्क है, ठीक है। क्रिटिसिज्म सॉरी क्रिएटिविटी इज ऑलवेज ऑफ अ हाई इम्पोर्टेंस, but it doesn't mean that criticism is of low importance, because criticism is something, it gives a perfection to creativity, okay. However, his definition of criticism as the endeavor in all the branches of knowledge, theology, philosophy, history, art, science, to see the object as itself it really is। कह रहा है कि जो एक क्रिटिक होना चाहिए, उसका जो नॉलेज का हॉरिजोन है, it must be much wider, because he must have a knowledge of theology, he must, अगर हम पोएट्री को एनालाइज करें, it doesn't mean that I have a knowledge about literature। तुम जितने भी ग्रेट क्रिटिक्स हैं, ऑब्वियसली दे आर द लर्नड मैन, दे आर द मैन ऑफ लेटर्स, बिकॉज ही मस्ट हैव, किसी भी वर्क को हमको एनालाइज करने के लिए, हम एक वर्क ऑफ आर्ट को क्या करते हैं, फ्रॉम वी एनालाइज अ वर्क ऑफ आर्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हमें एक जो क्रिटिक को क्या होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ थियोलॉजी, ही मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री, आर्ट, साइंस। क्यों होना चाहिए, बिकॉज ही अपने वर्क पर, अगर हम किसी भी चीज को जज कर रहे हैं, तो हमारा जो जजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारा जजमेंट शुड नेवर बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी की वो बात ही नहीं करते हैं। ही सेज दैट व्हेन वी एनालाइज एनीथिंग फ्रॉम द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, आवर जजमेंट विल बी शैडोई, आवर जजमेंट विल बी fallacious। If we judge anything from the historical point of view, then our judgment will be fallacious, so the judgment should be always on the real perspective। जो real estimate है, only we should judge a work of art only through the real estimate। Makes it necessary prerequisite for the valuable creation, he asserts that the creation of the quality is not possible if peoples are provided with a certain of a fresh ideas। और जो ideas होना चाहिए, critics के जो ideas होने चाहिए, हमेशा fresh होने चाहिए। The idea, there must be a novelty and a freshness in the ideas of a critic। Repetition बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर repetition होगा ideas में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही मोनोटोनस हो जाएगा। This is to achieve through the honest criticism। अगर हम ये चीजें अपने अंदर ले आए, only then we can do the honest criticism। If the best ideas do not prevail, it gives a rise to the culture anarchy। Only when the power of a man and the power of women come together can a good piece of a literary work carry। Once again, he is emphasizing for the best creativity, the power of a man and the power of a moment is very important। And this is the reason that he has given an example of Shakespeare। The Shakespeare is a great because his intellect and his the age in which he belongs to is very high, is very great। वो खुद भी इंटेलिजेंट था, एंड द एज, एलिजाबेथन एज इज अनडाउटेडली इज द बेस्ट एज फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ द लिटरेरी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप इनका वर्क को पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही, मतलब आई रेड लॉट्स ऑफ पोएम्स, बट व्हाट आई फील कि जिस तरीके से प्रेज किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जिस तरीके से शेक्सपियर को प्रेज किया है, अनडाउटेडली इट्स माइंड ब्लोइंग। उनकी पोएम ऑन शेक्सपियर को अगर आप पढ़ोगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने उसके नॉलेज को, उसके परसेप्शन को, उसके लिटरेरी जीनियस को, ही हैज एक्सप्लेन्ड इट मार्वेलसली। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गोएथी का एग्जांपल दिया है, उन्होंने बायरन का एग्जांपल दिया है, एंड ही हैज गिवन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर। Arnold also states that writing criticisms may produce in its practitioner a sense of creative joy। He compares the emotional state of writing criticism with the emotional states of creative writing। In this, he depicts the tropical senses that the criticism serves as a notebook। कह रहा है कि अगर जब क्रिटिसिज्म अच्छा होगा, तो क्रिएटिविटी अच्छी होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी अच्छी कब होगी, जब उसको अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। मतलब जब क्रिएटिविटी में अगर क्रिटिसिज्म होगा, तो क्या होगा, जो क्रिएटिविटी है उसमें परफेक्शन आएगा, और जब उसमें परफेक्शन आएगा, तो इंसान के अंदर क्या आएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा।
Arnold observes that the great writing emerged from the great ideas. कहते हैं कि कोई भी चीज के लिए ग्रेट राइटिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक ग्रेट आइडियाज नहीं हो। इस बात को उन्होंने स्टडी ऑफ पोएट्री में भी कहा कि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनर तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट आप जो आप करने जा रहे हैं, फर्स्ट आपका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो जिस चीज पे आप लिखने जा रहे हैं, जिस चीज पे आप पेंटिंग करने जा रहे हैं, दैट शुड बी ग्रेट, वो बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड होना चाहिए। And they are the manifestation when these ideas reach his mind। और जब आपके ग्रेट आइडियाज, जब जब ग्रेट आइडिया, कोई इंसान अपने ग्रेट आइडियाज को, अपने ग्रेट क्रिएशंस को, अपने ग्रेट थॉट्स को एक पेंटिंग में उतार देता है, एक पोएम में उतार देता है, एक कहानी में उतार, और जब उसको मास पढ़ता है, जब उसको ऑडियंस देखती है, तो क्या होता है, उनके अंदर एक अलग सा एनर्जी आता है। फिल्म्स क्यों इम्पोर्टेंट है? फिल्म्स जब किसी भी चीज को अगर हम किसी को बोलेंगे तो शायद उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम एलिवेटेड आइडियाज को, ग्रेट आइडियाज को अगर हम फिल्म के थ्रू अगर हम दिखाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग उससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारी सोसाइटी क्या होगी, कल्चर होगी, और हमारी सोसाइटी से जो अनार्की होगी वो धीरे धीरे इराडिकेट करती चली जाएगी। The critic performs an important task of identifying these ideas and disinterested and impart these ideas to people. He implies that the period of a great creativity dormants. The creativity can be traced to the lack of the objective criticism and public attention as much as to the creator of the great work. In this argument, Arnold established a literary criticism as an art form as the highest and as significant as any form of critic। उनका यही कहना है कि जो क्रिटिसिज्म है उसको भी क्या करना चाहिए, आर्ट में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्ट का ग्रेटनेस, आर्ट के अंदर परफेक्शन बिना क्रिटिसिज्म के नहीं आ सकता है। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ को सेकंड करते हैं। Further, Arnold arguments that the critical writing is so important activity of exercise free creativity. It is undeniable also that man may have a sense of exercising these free creative activities in other ways than producing the great work of a literature or art. If some people were better equipped to write criticism, it would be frustrating to insist that the channels that the talent only for creating original writing. Finally, criticism is necessary because Arnold thinks that creative power works with the certain materials, and for the authors these ideas, the best ideas on the every matters which the literature touches current at that time. However, authors do not discover these ideas, rather synthesize them into the work of the art. Therefore, if authors do not readily know these ideas, they have nothing to write about। Arnold's talk about the power of man and the power of woman, ये सारी चीजें जो है, ये कंक्लूजन है, ये बता रही, क्योंकि ये सारी चीजों को हम बार बार बता चुके हैं। सो आई एम जस्ट रीडिंग द पीपीटी। Arnold talks about the power of man and the power of woman. In this context, the author need to believe in a society where the true ideas are discussed and debated, where the true thoughts are cherished and passed on, like the ancient Greece and Renaissance England. Thus, he advocates the good criticism propagates good literature। यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि अगर अच्छी बातों को, अच्छे आइडियाज को, अच्छे थॉट्स को, अच्छे एक्सप्लेनेशन को, जो स्टाइल है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो क्या होगी, सोसाइटी में क्या होगी, जो है अनार्की चली जाएगी और सोसाइटी में कल्चर आएगा। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर क्या करता है, वो रीच करता है जो आर्ट है, जो क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव वर्क जो, अगर क्रिएटिव वर्क का मतलब यहाँ पर कभी भी कन्फाइंड सिर्फ पोएट्री से नहीं है, कि कभी भी ड्रामा से नहीं है। क्रिएटिव वर्क कुछ भी हो सकता है, फिल्म हो गया, सिनेमा हो गया, आर्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटिव। कह रहा है कि वो बहुत ही बड़े पाए का वर्क है, क्योंकि और जब उस वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है, उस वर्क को जब क्रिटिसिज्म, जब उसको परफेक्शन दिया जाता है, जब वो लोगों तक पहुंचता है, तो पूरी जो होल सोसाइटी है वो क्या करती है, नोबल बनती है, वो कल्चर्ड बनती है,
ठीक है। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम एंशियंट ग्रीस को देखें, अगर हम रेनासा पीरियड को देखें, तो उसमें जो एनलाइटमेंट मूवमेंट आया था, जो एनलाइटमेंट मतलब वो क्या है, वो भी एक क्रिटिसिज्म है, जिसने क्या कर दिया कि पूरा जो अंधकार था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और पूरे जो है इंग्लैंड में क्या कर दिया, एनलाइटमेंट ला दिया। तो वो जो मूवमेंट था दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ देते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। मैथ्यू अर्नोल्ड इज hailed as the first modern critic, and he is also called the critic for his contribution to the meaninglessness of the criticism in the realm of literature. In his work, The Function of Criticism, at the present time, 1865, Arnold makes an effort to demonstrate that criticism in itself has a several function and should be observed as an art form, that it is the highest and important as any other creative art. कहते हैं, यही बात बोल रहे हैं कि हमें क्रिटिसिज्म को कम नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से क्रिएटिव वर्क का इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से क्रिटिसिज्म, यानी कि उन्होंने क्या किया है, क्रिटिसिज्म को डिफेंड किया है कि क्रिटिसिज्म को भी आर्ट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ही ऑफर्स एन ऑब्जेक्टिव मेथड इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म थ्रू कंपैरिजन एंड एनालिसिस। ये हम यहाँ पे कंपैरिजन एंड एनालिसिस क्या है, यहाँ पे टच स्टोन की बात कर रहे हैं। हिज मेथड्स वेर मेड विद डिसअप्रूव्ड बाय, भले ही उनका जो टच स्टोन मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रूव नहीं हुआ। However, Arnold's methods of the literary criticism was widely accepted and went to influence the first 60 years of the 20th century. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 20th century के first 60 years के जो critical writers थे उनको उन्होंने influence किया, चाहे वो आई ए रिचर्ड हो, चाहे वो एफ आर लेविस हो, चाहे वो हमारे जो है टी एस एलियट हो। His ideas are the result of prevalence of the cultural anarchy. कल्चर किस तरीके से कल्चर आएगा, किस तरीके से अनार्की आएगा, लीड हिम टू टेक अप द मिसिंग टू ब्रिंग अबाउट द कल्चर रीजेनरेशन इन द लिटरेरी वर्क थ्रू द मीन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। और ये किसकी बात करते हैं, ही इज नॉट टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं करते, ही इज टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड हिज क्रिटिक in his critique of life, society, religion, culture and the national character and all the aesthetic, उन्होंने जैसे मैंने बोला है कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को ना ही सिर्फ आर्ट में अपनाया है, बल्कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को लाइफ में, सोसाइटी में, रिलीजन में, कल्चर में, नेशन में, कैरेक्टर में, कहता है कि क्रिटिसिज्म जिंदगी के हर एक मरहले में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज regarding my lectures, please message me. Thank you very much.